سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، اگر کوئی مردہ شخص ملا اور اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ اور کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کریں گے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بہار شریعت کی جلد اول پیج نمبر 815، میت کے نہلانے کا بیان، مسئلہ نمبر 12، مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر، تو اگر اس کی وضع قطعہ مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت یعنی نشانی ایسی ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، یا مسلمانوں کے محلے میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، مسلمان مردے کافر مردوں میں مل گئے تو اگر ختنہ وغیرہ کسی علامت سے شناخت کر سکیں تو مسلمانوں کو جدا کر کے غسل و کفن دیں اور نماز پڑھیں، اور امتیاز نہ ہوتا ہو، فرق نہ کر پاتے ہوں تو غسل دیں اور نماز میں خاص مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کریں، اور ان میں اگر مسلمان کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے مقبرے یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، ورنہ علیحدہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا جان، عرب شریف سے واپس سے آیا ہوں، مجھے آپ سے سوال نہیں کرنا، مجھے آپ سے کچھ چاہیے بابا جان۔ یہ بھی سوال ہے، انڈرسٹوڈ سوال تو ہے۔ یہ پچھلے سال بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا، بول رہے ہیں کہ میں دوبارہ آیا ہوں تو کچھ ملا ہوا تو آئے ہوں گے نا۔ مدینہ پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، پڑھے رہیں گے تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ بابا جان آپ سے ایک چیز چاہیے بابا جان۔ آپ مادی چیزیں تو اب کیا مطلب میں دے سکتا ہوں غریب آدمی، آپ پچھلی بار بھی یہ دے دو وہ دے دو، پین نہیں دے نہیں، دو، پیالہ دے وہ دو۔ بابا جان وہ چیز نہیں چاہیے بابا جان، صرف ایک چیز چاہیے بابا جان، وہ آپ دے بھی سکتے ہو بابا جان۔ اب دے تو سکتا ہوں، پیالہ دے سکتا ہوں، یہ چادر، جو مطلب آپ مانگو گے، میں جن چیزوں کا مالک ہوں دے سکتا ہوں۔ اپنے مسئلہ کوئی ایسا سوال کریں گے جس سے سیکھنے کو ملے نا سب کو۔ اب آپ بولیں گے پیالہ دے دو میں دوں گا لو، تو دوسرا بولے گا چادر دو، کسی کو بوتل کی آئیڈیا آئے گی، تو یہ تو میں تو پھر بابا جان یہ چیزیں دل نہیں چھوٹا ہے چاہیے میرا۔ بابا جان، یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اب وہ جو بھی چاہیے آپ کو، میں نے مثالیں دی، مطلب اس طرح مانگتے رہتے ہیں۔ بابا جان مجھے صرف آپ سے یہ چیز چاہیے کہ جنت میں آقا کا پڑوسی چاہیے جائے۔ تو میں دے ہی نہیں سکتا ذرا، میرے کو خود پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے۔ میرے
बस में नहीं है। नहीं अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि हम सभी आका के सदक़े में जन्नत में चले जाए, है ना। एक एक क्यों, हम सारे नहीं साथ रहे। हो सकता है कबूलियत की घड़ी वो करम हो जाए। प्यारे बापा जान, मोहम्मद असद रज़ा तारी मरकज़ लौलिया लाहौर से अर्ज़ गुज़ार हुआ हूँ आपके पास। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है कि जो रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख पाते, उन पर कैसे इनफरादी कोशिश की जाए कि वो रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े रख पाएँ। मुबारक लफ्ज़ नहीं है, मुबारक कुरानी लफ्ज़ है ये, मुबारक। ईद जज़ाकल्लाहु खैरन। मुबारक, ईद मुबारक नहीं, रमज़ान मुबारक। इनफरादी कोशिश के लिए ये कि उनमें फैज़ान रमज़ान का दर्स दिया जाए और इनको सवाब बताए जाएं रोज़ा रखने के, तो इस तरह इंशाअल्लाह उनकी तरगीब होगी। इनफरादी कोशिश की जाए, फ़ोन करके समझाया जाए, सूती पैगाम दिया जाए, तो इस तरह कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो रोज़े पर आमादा होगा। नहीं भी हुआ तो सवाब आपको मिलेगा नेकी की दावत देने का। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। बाज़ इस्लामी भाई 4 बार कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म फरमाते हैं 4 बार जी, और बाज़ इस्लामी भाई 1 बार पढ़ते हैं और तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ते हैं। क्या अफजल है? अल्लाह बेहतर जाने क्या अफजल है। इखलास जिसमें होगा सवाब ज़्यादा मिलेगा। अब मेरे पास ज़ाहिर इसका कोई पैमाना नहीं है कि मैं ये कह दूं कि भाई 4 बार पढ़ना अफजल है या वो 1 बार पढ़ना अफजल है। वैसे वो समझना चाहिए, कुरान करीम को समझ के पढ़े, गम के साथ पढ़े कि कुरान करीम गम के साथ नाजिल हुआ है, हुज़्न के साथ नाजिल हुआ है और हुज़्न के साथ गम के साथ पढ़ा जाए। कुरान करीम अरब के लहजे में पढ़ा जाए, इस तरह के इसके आदाब हैं। किबला रू बैठा हो, 2 जानू हो, बा वुज़ू हो, जितने अदब आदाब का ख्याल रखेगा, खुशू और खुजू के साथ, तरतील के साथ, यानी ठेर ठेर कर कुरान करीम पढ़ेगा, इतना इसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। और ये भी है कि कुरान करीम समझ कर पढ़े। अब समझने की 2 सूरतें, एक तो गौर व फिक्र, मतलब गौर व फिक्र करना, तो 2 सूरतें इसकी। एक सूरत तो ये गौर व फिक्र की कि जैसे मुफस्सिरीन होते हैं वो गौर व फिक्र करते हैं और उनके पास सारे उसूल उनको पता होते हैं ना, मुफस्सिर वो होता है। अब गली गली आजकल जो मुफस्सिर चल खड़े हुए हैं, मेरी मुराद ये नहीं है, जो वाकई तफसीर का इल्म रखता है। तफसीर का इल्म आसान नहीं है, हर आलिम भी मुफस्सिर नहीं होता, तो उसका गौर व खोज करना ये एक सूरत है और ये तो बहुत आला दर्जा है इसका। और दूसरे नंबर पर वो हैं कि जिनको सलाहियत नहीं है तफसीर का, वो इल्म नहीं रखता, उसका गौर व खोज करना। तो जिस तरह मुफस्सिर गौर व खोज करता है, इस तरह इसका गौर व खोज करना जो अहल नहीं है, ये तो है ही नाजायज़ ही है उसके लिए। तो अब इसके गौर व खोज की सूरत ये होगी कि जो मुस्तनद आलिम ने, मसलन आगला हज़रत ने तर्जमा किया, ख़ज़ानुल इरफ़ान सदरुल फाजिल ने लिखा, या सिरातुल जिनान है ना, इसकी तफसीर, तो ये आलिम की तफसीर तर्जमा पढ़कर उसमें गौर व फिक्र, उसके दायरे में रहकर एक हर्फ भी अपनी तरफ से कम ज़्यादा ना करे, ये भी है मुश्किल, तो गौर व खोज कर सकता है, वरना नहीं। तो अगर आलिम दीन का, जैसे मैंने आपको बताया, सिरातुल जिनान से मसलन पढ़ता है, तो ये भी सवाब का काम है। मगर तिलावत के जो अपने फ़ज़ाइल है ना, कि एक हर्फ की 10 नेकियां मसलन, तो क्या तर्जमे की भी 10 नेकियां हैं? मुझे पता नहीं है। ये बिल्कुल समझ कर पढ़ना चाहिए, तर्जमा पढ़ना चाहिए, तफसीर पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 4 अफजल या 1 अफजल, अब मेरे को चूंकि पता नहीं है, मैं इसमें जुर्रत कैसे करूं, अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ा कर मैं कुछ जवाब दे दूं, ये मुझसे नहीं होता। रब जिससे राज़ी हो जाए। बहरहाल तफसीर पढ़नी चाहिए, तर्जमा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हो सकता है कि एक कुरान करीम इस तरह पढ़ना 100 कुरान से अफजल हो, 100 बार पढ़ने से, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है,
तो मैं इसलिए अपनी अटकल से कोई मसला नहीं बोलना चाहिए। जो अपने को जब तक पढ़ा ना हो अपनी तरफ से नहीं बताना चाहिए। आप भी यही ख्याल रखा करें, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है। अच्छा, एक खुशखबरी मुझे सुनानी थी, फिर रह गया मैं। खुशखबरी है एक इस्लामी भाई के लिए, एक के लिए। तो मुझे हमारे निगरान पाक बाबुल मदीना जिनके पास है, रुकन शूरा हाजी अमीन ने बताया कि हमारे एक मुबल्लिग हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उनसे किसी ने मतलब कोई खुश हुए, कोई साहिब हैसियत इस्लामी भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी माँ के साथ मदीने शरीफ में मदीने भेज दो उम्रा शरीफ के लिए। नाम लूं, ले लूं, अबू रहीम अब्दुल रऊफ अत्तारी, ये हमारे जामियतुल मदीना के तालिब इल्म है। अल्लाह बरकत दे। घर में जौन सा पानी सिर्फ बर्तनों के इस्तेमाल में हो रहा है, सिर्फ मस्जिद में जौन सा पानी लेके जाना वो पीने के लिए, अगर उनको मना कर दिया जाए, वो कहते हैं आप मदीने शरीफ से पानी क्यों लेके आते हैं? सवाल, तो क्या सादा पानी भी मस्जिद या मदरसे से भरकर नहीं ले जाया जा सकता? जवाब, जहां जहां मस्जिद या मदरसे में से भरकर ले जाने का उर्फ है वहां जायज़, और जहां उर्फ नहीं वहां नाजायज़। कहीं पानी वाफिर यानी कसीर मिकदार में होता है और लोग बाल्टियां भर भर कर ले जाते हैं, तो कहीं पानी की काफ़ी तंगी होती है। और हालत ये होती है कि कभी मोटर भी काम करती है तो कभी नहीं करती, और पैसे देकर टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। ऐसी तंगी की सूरत में सिर्फ एक आध बोतल भरने की हद तक इजाज़त हो सकती है। इसमें भी वहाँ का उर्फ देखा जाएगा। अगर उर्फ ना हो तो बोतल भर कर भी नहीं ले आ सकते। अगर इंतज़ामिया ने सराहतन लिख कर लगा दिया है कि पानी भर कर ले जाना मना है, तो इस सूरत में भी पानी भर कर ना ले जाएं। बहरहाल पानी की किल्लत व कसरत यानी कमी और ज़्यादती के मुताबिक हर इलाके की मस्जिद और मदरसे का अपना अपना उर्फ यानी रवाज होता है। इसी के एतबार से जवाज़ व अदम जवाज़ यानी जायज़ और नाजायज़ होने का हुक्म होगा। ये चंदे के बारे में सवाल जवाब पेज नंबर 54-55 से मैंने आपको अर्ज़ किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर उनको मना कर दिया जाए, वो कहते हैं आप मदीने शरीफ से पानी क्यों लेके आते हैं? वो तो आबे जमजम शरीफ तो है ही ले जाने का, तो उर्फ है इस पर कि वहाँ भी पीते हैं लोग, ले जाते हैं। इसके लिए तो मतलब पूरा इंतज़ाम है ले जाने का। तो वहाँ से हर बात पर वहाँ थोड़ी कयास करेंगे तो काबे के गिर चारों तरफ लोग नमाज़ें पढ़ सकते हैं वहाँ, तो यहाँ भी क्या चारों तरफ नमाज़ें पढ़ेंगे क्या? काबे के अंदर चला जाए कोई, नसीब करे अल्लाह, तो जिस तरफ भी मुँह करे नमाज़ पढ़ सकता है। वहाज अहमद अत्तारी, पाक नईमी कबीना, गुजरात से हाजिर हुआ हूँ। बापा जान की बारगाह में सवाल है कि बापा, ये जो हम उलमाए किराम का अदब करते हैं और उनके हाथ चूमते हैं, और जैसे कि हम अपने बुजुर्गान दीन के हाथ भी चूमते हैं, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? क्या इसमें कोई सवाब भी मिलेगा या जस्ट वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए? आप इसकी शरई हैसियत बयान फरमा दीजिए। हदीसों में है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का चूमना साबित है। तो इसकी तो बहार शरीयत में कई हदीसें लिखी हुई हैं हाथ चूमने की, तो शरन तो ये बिल्कुल जायज़ है। अगर ताज़ीम की नीयत से चूमेगा आलिम दीन की, सवाब मिलेगा। माँ बाप का भी चूम सकते हैं, दादा दादी नाना नानी इनके भी चूम सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि ये तो इतना उम्दा फ़ैल है कि बुज़ुर्गों के हाथ चूमने की वजह से बाज़ लोग क़यामत के रोज़ बख्शे जाएंगे। बापा, आपके बारगाह में हम बुज़ुर्गों का वो सवाल है कि बड़े दिल मायूस हुए में, बड़े बेचैन हुए हैं, आप अपने कदमों से दूर ना कीजिएगा। कोई 62 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 61 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई पंजाब से आया है, कोई कराची से आया है, कोई मुल्तान से आया है। आपके बारगाह में बैठे हुए, जब तक ज़िंदगी है इन्हीं कदमों में पड़े रहने दीजिए। आपका कॉल है कि पड़े रहने से ही काम होगा। हमें कोई तमन्ना नहीं, न बस सरकार की नज़रों में पड़े और आपके कदमों में पड़े रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए।
الحمدللہ 60 62 سال کے 75 سال کے 70 سال کے بزرگ کھڑے ہیں آپ کے سامنے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 62 سال. 62. الحمدللہ. آپ تو مبلغ بن سکتے ہیں یار. آپ کی تمنا ہے تو صرف آپ کی زیارت کی, اور کوئی تمنا نہیں. اللہ کرے اسی تمنا سے ہماری سانس نکل تو جائے. تمنا پوری ہو گئی نا, زیارت تو ہو گئی نا. یا اللہ ان سب کو حاجی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اقامت میں حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ آپ حجر مطہرہ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف فرما ہوتے, تو جب کبر حی علی الفلاح کہتے تو آپ اپنے آستانہ عالیہ سے تشریف لے آتے, جہاں جہاں سے گزرتے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے, حی علی الفلاح پڑھاتے, تو یوں کھڑے ہو جاتے ہو. تو حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا شاید یہ وجہ بھی لکھی ہے مرآت شرح مشکات میں. تو اس کو سنت کہنے میں حرج نہیں ہے. اولاد حسین اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوئے ہیں. جی آیا نو. پیارے باپا جان, مرتے دم تک جذبہ سلامت رہے, مرتے دم تک مدنی کام کرتے رہے, مرتے دم تک آپ کی صحبت ملتی رہے, اس بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں. دھوم دھام سے مدنی کام کرتے رہیں, جتنا مدنی کام کرتے رہیں گے جذبہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگنے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, تو کیا یہ دعا ہاتھ اٹھا کر اور زبان سے کی جائے؟ اس میں مختلف قول ہیں. تو ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ لی جائے دعا 2 خطبوں کے درمیان, قبولیت کا وقت ہوتا ہے, وہ دعا قبول ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرا محمد صدیق رضا تاری, جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی جیل مرکز اسلام آباد سے. باپا, میرے والدین اور میرے کچھ اسلامی دوست آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے. علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, نماز کے دوران رونا کیسا ہے, اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور جو روئے اگر اس کی ہچکی بند جائے تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے نماز میں کہ پیچھے آواز جاتی تھی. رونا نماز میں اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. ویاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس اتاری مرکز اولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو آب زمزم کے ہم 5 لیٹر وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اپنے پاکستان کے لیے, تو کیا جو ہم اپنی ایکسٹرا بوٹلز اپنی بیگ میں لے کے آتے ہیں ان کے بتائے بغیر, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اصل وہ ایک بار ہوا تھا حادثہ پاکستان کا PIA کے ہوائی جہاز میں, اوور لوڈ زمزم شریف بھر لیا تھا, حاجیوں کا ایک جہاز گر گیا تھا. تو اس کی تحقیق میں یہ آیا تھا کہ حاجیوں نے جو آب زمزم لیا تھا نا, اس کی وجہ سے اوور لوڈ ہو گیا تھا, جہاز گر گیا تھا. تو اس کے بعد سے سختیاں بڑھ گئی, شاید اسی وجہ سے کہ اوور لوڈ نہ ہو. تو اب اپنا جو بڑا بیگیج ہے, لگیج, اس میں اگر کسی نے آب زمزم لیا ہو تو اس میں ذرا اوور لوڈ نہیں ہوگا نا, وہ تو اپنے لیمٹ کے اندر اس کا وزن ہوگا. شاید اگر یہی وجہ ہے تو پھر تو حرج نہیں ہے, لیکن اب کیا قانون ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ ان کو پتہ ہوگا, یہ کاروان والوں کو, کہ بیگیج میں لانے کی پانی اجازت ہوتی ہے یا نہیں. ان کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, ان کو قانون پتہ ہوگا. یہ تو آپ سونا بھر کے لاؤ تو تھوڑی کچھ بولیں گے, وہاں کی گورنمنٹ کا قانون دیکھا جائے گا. محمد ابرار اتاری, جامعۃ المدینہ مار اور مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کیا ہم بدعت حسنہ کو مباح کہہ سکتے ہیں, اور بدعت سیئہ کی کوئی سی مثال؟ بدعت مباحہ یہ تو الگ اصطلاح. حسنہ وہ جو مطلب اچھی بدعت, جب اچھی ہو گئی وہ, اگر وہ کار ثواب ہو گئی ہے بدعت حسنہ ہے نا. جیسے تراویح کی باقاعدہ جماعت, اس کو خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, کہ یہ اچھی بدعت ہے, تو یہ کار ثواب ہے.
तो जो काम कार्य सवाब हो गया और मुबाह ना रहा ना, वो मुस्तहब का दर्जा उसने पा लिया, इबादत का दर्जा पा लिया। मुबाह होती है, जैसे कि बिरयानी का सबूत नहीं है, खाने वाले को कोई वसवसा भी नहीं है। हाँ, जश्न विलादत के नाम की होगी तो वसवसा आएगा, या जश्न विलादत पर वसवसा आएगा। बिरयानी को भी साबित नहीं कर सकता जो मुरवजा बिरयानी है कि ये किसकी सुन्नत है, लेकिन पेट मीठा है तो इस पर वसवसा नहीं आता आमतौर पर। तो ये बिदअत मुबाहा कि इसमें कोई नाजायज़ की भी सूरत नहीं है। बिदअत सय्यअह माने बुरी बिदअत जो किसी सुन्नत को मिटाए। मोहम्मद असफर आतारी जामिअतुल मदीना फ़ज़ान मदीना उकाड़ा से पाक बुखारी कबीना, आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि वो कौन से औकात हैं जिनमें दुआ कबूल होती है और किन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। मकतबतुल मदीना की किताब फ़ज़ाइल दुआ, जो कि तर्जमा है रईसुल मुतकल्लिमीन वालिद आला हज़रत की किताब अहसनुल विआल आदाब दुआ का, उसको पढ़ लीजिए। उसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे आदाब मिलेंगे, लेकिन इनकी कबूल होती है, किन की नहीं होती, किस जगह पर कबूल होती है, किन किन औकात में कबूल होती है, उसमें काफ़ी तफसीलात हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। मोहम्मद शुएब फ़ज़ान गौसे आज़म गड़ा मोड़ से। पापा, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या भाभी से देवर प्यार ले सकता है, सर पर हाथ रखा सकता है? अपने आप से पूछ लें कि भाभी से देवर हाथ सर पे रखवा सकता है? नहीं, अपने आप से पूछ लेना। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। नहीं देंगे जवाब? नहीं। अगर वो मदनी मुन्ना है देवर, 5-7 साल का है, तो अगर मुराहिक नहीं है, शहवत के करीब मुराहिक, तो जैसे 5-6 साल का है तो भाभी उसको प्यार भी कर सकती है, आई और ना समझे। बाकी अब बड़ा हो गया तो फिर देवर जो है भाभी के हक में मौत है, हदीस पाक में ना, तो ये बहुत ख़तरनाक है देवर। तो वो सर फिरवाने की बात क्या है, मतलब नज़रें भी ना फिरवाए, ना फेरे उस पर, आंखों का कुफले मदीना, फ्री भी ना हो उससे। भाभी और देवर का सख्त पर्दा है, जेठ और भाभी का भी पर्दा है। जेठ और देवर का फ़र्क कौन कौन समझता है? जेठ कौन, देवर कौन? सब नहीं समझते। यानी कि औरत के शौहर का छोटा भाई ये देवर होता है, और शौहर से बड़ा जो होता है भाई वो जेठ कहलाता है। बाबुल मदीना डिवीज़न करार मुर्शिद, आपकी बारगाह में सवाल है कि सुन्नत गैर मौक़दा जो है, इसमें अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मसनून पढ़ी जाती है। अगर ये दुआए मसनून और दुरूद शरीफ बंदा भूल जाए और इसके बाद खड़े होकर सुभान अल्लाहुम्मा दुआ पढ़नी होती है, ये भूल जाए बंदा, तो सुन्नत गैर मौक़दा में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? नमाज तो हो जाएगी। अब ये कि तीसरी में सना को मुस्तहब लिखा है, और सुन्नत मौक़दा भी अगर छूट जाती है नमाज की, तब भी नमाज को दोहराना वाजिब नहीं होता, सज्दे सहू भी वाजिब नहीं होता, लेकिन सुन्नत मौक़दा तर्क करने की आदत बनाना ये गुनाह। मोहम्मद अरसलान अत्तारी जामिअतुल मदीना फ़ज़ान अत्तार डिफेंस मरकज़ुल औलिया लाहौर से आने की सआदत हासिल हुई है। मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ है कि जब कोई बयान सुनते हैं तो उस वक़्त अमल का बहुत ज़्यादा जज्बा मिलता है, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ अमल का जज्बा कम भी हो जाता है और बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाता है। इसका हल इरशाद फरमा दें। मुताला करते रहिए, बयान सुनकर अगर मदनी माहौल से वाबस्ता हैं और मदनी काम भी आपके ज़िम्मे हैं, 12 मदनी काम करते हैं, मदनी इनामात पाबंदी से अमल के साथ साथ फ़िक्र मदीना की रोज़ तरकीब है, तो इंशाअल्लाह इस तरह की तरकीबें रहेंगी ना, और मदनी काफ़िला भी हर महीने होगा कम अज़ कम, तो इस तरह बैटरी जो है ना आपकी वो चार्ज होती रहेगी।
वरना फिर वो क्या है, वही होगा जो आप कह रहे हैं, उसका इम्कान ज़्यादा है। तो इसलिए अमल करता रहे, फ़ज़ाइल पढ़ता रहे, तर्क करने के नुकसानात भी पढ़ता रहे, और सिर्फ सोबत जो है ना वो अच्छी रखे आशिकान रसूल की, बाअमल आशिकान रसूल की सोबत रहेगी, अमल में जज्बा मिलेगा। जैसे कि बाज़ आशिकान रसूल कहलाने वाले हमारे उनके अखलाकियात ऐसे रफ़ होते हैं कि अल्लाह की पनाह, तो ऐसों की अगर सोबत मिली तो फिर ज़ाहिर है कि कहाँ से अमल का जज्बा मिलेगा। तो सोच समझ के सोबत आदमी इख्तियार करे। सल्लू अलल हबीब। मोहम्मद रईस अतारी जामिअतुल मदीना इशाअतुल इस्लाम मदीनातुल औलिया मुल्तान। बापा जानी, मेरा सवाल यह है कि नमाज में खुशू खुजू कैसे हासिल किया जाए? तो नमाज इस तरह पढ़ कि खुदा को देख रहा है। अगर ये नहीं हो सकता तो इस तरह पढ़ के खुदा तुझे देख रहा है। और हातिम असम अलैहि रहमतुल्लाह अलकरम की हिकायत इसमें बड़ी वो मालूम आती है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ऐसे कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है, मैं पुल सिरात पर खड़ा हूँ, मेरे सीधी तरफ जन्नत है, उल्टे हाथ पे दोज़ख है, मेरे पीछे मलकुल मौत मेरे इंतज़ार में है, और मैं तसव्वुर करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी नमाज है। इस तरह के तसव्वुरात के साथ अगर कोई नमाज़ें पढ़े तो इंशाअल्लाह वो खुशूर खुजू की भी तरकीब बने। इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखें। शान हैदर अख्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर मालकी कबीना से हाजिर हुआ। या मुर्शिदी, सवाल ये कि अगर चावल के दाने का कुछ हिस्सा दांतों में रह गया और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो अब वो जो ज़र्रा है, ज़र्रा बराबर या मिकदार में कुछ ज़्यादा वो अंदर चला गया, तो अब क्या हुक्म होगा उसमें? अगर वो चला गया अंदर तो पहले का सहरी के वक्त का चने से छोटा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चने के दाने से छोटा है तो। गुलाम हैदर अतारी हनफी कबीना। जी हाँ, मस्जिद दर्स की जिम्मेदारी है। प्यारे बापा जान, आपसे सवाल है कि जो औरतें काम करती हैं, ड्यूटी करती हैं, इनको किस तरह किसी मजबूरी के तहत करती हैं तो किस तरह वो ड्यूटी उन्हें करनी चाहिए? जैसे उनका पर्दे का हुक्म है, तो अगर वो बीमार हो जाती हैं तो मसला बन जाता है, तो अक्सर हॉस्पिटलों में डॉक्टर हजरात ही उनका इलाज वगैरह, ऑपरेशन वगैरह जो है ना वो मामला होते हैं, तो इसके लिए इरशाद फरमा देंगे क्या? पर्दे का तो मामला सख्त है इनका, इस दौर में तो पता नहीं कोई अमल करती हो ना करती हो। पर्दे ना आइंदा ख़तरा हो ना अभी ख़तरा हो, बेपर्दगी तो बहुत ज़्यादा है। औरतें जो जॉब करती हैं तो बेपर्दा आमतौर पर होती ही बेपर्दा है, उमूमन जो जॉब करती हैं दफातर में, तो इस तरह तो इनका गुनाहगार हो रही हैं ये ऐसा करके। और बीमारी में ये कि जब जहाँ तक मुमकिन हो तो वो औरत जो तबीबा हो उससे इलाज करवाया जाए। अब अगर औरत तबीबा नहीं मिलती या वो मर्ज़ वो तबीबा उसका इलाज नहीं जानती, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में मर्द से इलाज करवाया जा सकता है। मर्द वो मर्ज़ की जगह देख भी सकता है, छू भी सकता है। पर्दे के बारे में सवाल जवाब ये किताब, इसमें ये काफ़ी इस तरह के मसाइल लिखे हुए हैं, मकतबुल मदीना से लेकर पढ़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाबान रज़ा तारी है, मैं जमजम नगर हैदराबाद से आया हूँ। मेरा बापा यानी से सवाल है कि मदनी मुन्ना को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? अगर मदनी मुन्ना मदनी मुन्नी 7 साल के हो जाएं और रोज़ा रखने की ताकत हो तो उनको रोज़ा रखवाना चाहिए कि वालिद उनको रोज़ा रखवाए, जो भी सरपरस्त है। 7 साल या इसके बाद हाँ कमज़ोरी है तो फिर भले ना रखवाए, ऐसी कमज़ोरी के वो रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो फिर हरज नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है। बाबा जान, जब हम ज़िम्मेदारान शख्सियात से जाके मिलकर दावत इस्लामी के लिए इत्तिहाद वगैरह इकट्ठे करते हैं
تو کئی شخصیات رمضان المبارک میں سحری افطاری کی مد میں احتیاط دے دیتے ہیں، تو کیا اس کو ہم بیچ کر دعوت اسلامی جس طرح اعتکاف میں دوسری مد میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر سحری افطاری کے لیے دیے اسی عنوان پر تو اسی کام میں خرچ کرنے پڑیں گے. جو بھی چندہ جس مد میں دیا جائے اس میں صرف کرنا واجب ہے. باپا جان جیسے سحری افطاری میں ساؤنڈ کا خرچہ بھی آتا ہے، لائٹنگ کا خرچہ بھی ہے، کیا اس راشن کو وہ شخصیت سے اجازت لے کر کیا اس کی مد چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ اس کا مالک اجازت دے نا، مالک جس نے دیا ہے تو پھر وہ جو کہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. دوران جماعت اگر رائٹ ہینڈ سے نیکسٹ والا جو اسلام بھائی نماز پڑھ ہے اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نماز سے نکل گیا ہے. اگر رائٹ ہینڈ والا جو اسلامی بھائی ہے وہ بھی ایک قدم مطلب کہ اس طرح ہو کے سائڈ پہ چلے جاتا ہے تو جو مڈ میں گیپ ہے تو وہ کور ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں چاہیں بھائی، تو ان سے نیکسٹ والے یہ چاہیں بھائی ہیں، تو یہ ان کا وضو اگر ٹوٹ گیا اچھا یہ ادھر چلے گئے ہیں، یہ اب یہ گیپ رہ گیا تو یہ کور ہو سکتے کہ نہیں؟ الٹا ہو یا سیدھا ہو، ہاتھ امام جس طرف ہو اس طرف صف کو مکمل کرنا ہے. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ. جیسے یہ اب گیپ ہو گیا آپ کے اور دونوں کے بیچ میں، جی جی، اور امام صاحب جو ہے نا یہ اس طرف ہیں، اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ یہ گیپ پورا کریں. اچھا. اور اگر امام اس طرف پڑھتے ہیں آپ کو تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ گیپ پورا کریں. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار